All right, ladies and gentlemen, this is Shashi Ankin Mughal, and for the past few days, I've been a part of election campaign and election for the Advocates Association in Patna High Court. My dad is contesting for the post of vice president, and apart from that, I'm here just to help him out, and to help him I'm trying to do every sort of things what I might be doing, and literally I'm enjoying this phase, and it's been a quite proud moment for me, because I will let you know, because due to election campaigns anywhere in general, if you are social and you're okay with your social behavior and you are socially active, then you tend to meet many people every day, and this is the best part, and literally I'm enjoying. And apart from that, I will let you know about the associations associated in Patna High Court. There is one barristers association, then advocates association, then lawyers association. So at first barristers association elections are over. Now it's done for advocates association, and then after that lawyers association. Apart from that, few more association, or you can say clubs, are also there. One is Lion, and literally I have no idea about other ones, and these 3 and 4 are known to me. Well, I will let you know once I have more information about it. And apart from that, for the post of president, 15 candidates are contesting. For the post of vice president, 28 candidate is contesting. And the best part is that for the post of president, general secretary, and treasurer, there are one seat, means one post. And for vice president, joint secretary, executive members, there are, means for VP there is 3, for JSAC I guess there is 3, and executive member, and also I guess 3 and 3. And apart from that, the plus point is that dad is contesting election for vice president, so this time a lot of people has been contesting. Lot of people are here in this post, about 28 people, so it's a huge competition. And while talking about the voters in advocate association, previously it was about 7500 approx, 7500, and this time when the list was published, it is around 3900 something, approx 4000 people are right now enrolled in advocates association, and rest of them are I guess तो इसके अलावा और कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिलहाल अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग हो गया है, थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया है। कुछ लोग इसलिए भी खड़ा हुए हैं ताकि किसी का वोट भी काट सके, ऐसे सब जगह होते हैं। कुछ लोग इसलिए भी खड़ा हुए हैं कि वो देख सके कि कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो देख सके कि कितने लोग उनको पहचानते हैं। तो इनका भी एक मकसद है, मेन मकसद है, वो है वोट काटना। कुछ लोग इसलिए भी खड़े हुए हैं अपने आप को आजमाने के लिए, अपना एक शौक पूरा करने के लिए, और कुछ लोग इसलिए भी खड़े हुए हैं कि कंपटीशन दें, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट पे 3 पोस्ट हैं
और सीरियल नंबर 1 2 3 जिसका भी आया वो विनर है. ही इज़ पार्ट ऑफ द बार एसोसिएशन, मीन्स एडवोकेट्स एसोसिएशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट. तो कुल मिला के ये हो गया कि मैं ये पूरा इंटायर इलेक्शन का जो जर्नी है वो मैं डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ. इसमें पापा जीते या हारे मैटर नहीं करता है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आवर राइट इज़ ओनली टू वर्क बट नेवर टू प्ले विथ इट्स फ्रूट. तो देखते हैं क्या होता है. और जिस हिसाब से कंपटीशन लग रहा है थोड़ा सा पिताजी को मेहनत करना पड़ेगा, और आई होप पापा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और जीतेंगे, पापा जीतेंगे. फर्स्ट ना सही, सेकंड ना सही, थर्ड तो आएंगे, जीतेंगे. ही विल बी वाइस प्रेसिडेंट दिस ईयर. लास्ट ईयर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था मामला, और आई गेस जनसक पे थे, जनसक नहीं जॉइंट सेक्रेटरी पे थे, तो 4-5 वोटों का फासला रह गया था. और उससे पहले 2 टर्म पापा रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी. तो इस बार वाइस प्रेसिडेंट पे ये हैं, लगे पड़े हैं. वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी पे ज़रूर आएंगे. जॉइंट सेक्रेटरी क्योंकि एक सिंगल पोस्ट है, और जो 3 इज्जतदार पोस्ट है यहाँ पे एडवोकेट्स एसोसिएशन में, वो हो गया प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जनसेक, और तीसरा ट्रेजरर, क्योंकि सिंगल पोस्ट है इंडिविजुअली. तो ये थोड़ा सा डिसीजन मेकर पोस्ट है. बाकी वीपी वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह तो इधर हाँ तो हाँ, इधर ना तो ना, ऐसा मुझे लगता है. मीन्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, या अकॉर्डिंग टू माई, अभी तक मैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है इसमें, तो ठीक है. बाकी आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग, एंड बस ये डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ. देखता हूँ कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है, और जर्नी हमारी कहाँ तक चलती है. और क्योंकि मैं इसमें वक्त दे रहा हूँ, फ़िलहाल 1 महीना मैं छुट्टी लेके आया हूँ, और मतलब अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेट किया हूँ, थोड़ा सा एडवोकेसी के प्रोफेशन को भी थोड़ा सा गुरु सीखने का एक मौका मिल जाए. चूँकि मुझे ये कम्प्लीटली डेड प्रोफेशन लगता है, बट स्टिल आई एम वेयरिंग ऑन एंड टाई. देखते हैं. और या इट्स अगेन एवरीथिंग इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड ऑल. सो टिल नाउ आज हो गया मंडे 27 ऑफ मार्च, और जो इलेक्शन है वो 7 ऑफ अप्रैल. मतलब कुल मिला के हमारे पास जो दिन बचे हैं वो 10 से 11 दिन. आज चूँकि 27 हो ही गया, तो 10 दिन के अप्रॉक्स बचा है. तो जो मेहनत हमें करनी है वो इस 10 दिन में ही करनी है. और सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल. और जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो एक रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए मैदान में उतर रहे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. और विच इज़ द बेस्ट पार्ट. ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर एक लॉबी के हैं, या पर्टिकुलर एक रिलीजन के हैं, या पर्टिकुलरली आप किसी धर्म या किसी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई सिंपैथी गेन करने के कारण. ऐसा नहीं है कि कोई वोट मांग रहा है. यह है कि फेयर इलेक्शन है, और लोग सही तरीके से इसमें उतर रहे हैं. लोग हालांकि मुझे इसमें लग रहा है कि कुछ एजेंडे इसमें डालना चाहिए. एजेंडा इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव्स जो मेंबर इसमें आए, तो वो बहरहाल बहुत सारे के लिस्ट में है भी. उसमें से कुछ एक जो मैं मानता हूँ वो है कि हर एक एडवोकेट का इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मायने में भी. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है जनरली, उनका आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला होता नहीं है. हमारा जो मेजर
काम होता है जो मैं सीधे और सरल शब्दों में आपको बताऊं तो वो है कि सरकार या सिस्टम में रहते हुए उनके दांत खट्टे करना, लड़ना सिस्टम से अपने लिए, अपने लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो वंचित रह गए हों, जो या जिनको अपने राइट्स, अपने अधिकारों का मिसयूज़ किया गया हो या जिनके मौलिक सिद्धांतों के ऊपर आँच आई हो, जो फंडामेंटल राइट्स या यूँ कहे कि हर वो इंसान जो या जिसे सही नहीं लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है और हम एज अ कैटलिस्ट, एज अ सपोर्ट सिस्टम उनके साथ रहते हैं और उनके इस मुहिम में उनका साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। उनका शारीरिक शोषण हो, मेंटल हरासमेंट हो, डाइवोर्स हो, ज़मीन हो, क्रिमिनल हो, किसी भी तरीके का साइबर से रिलेटेड हो, हर एक तरीके से लीगली हम लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और फॉर एंटायर ह्यूमन मैनकाइंड, एडवोकेसी इज़ द ओनली प्रोसेस या प्रोसीजर्स which will allow you to be in the system for against the system. Mark my words. बहरहाल देखते हैं अभी तक जर्नी कहाँ तक पहुँचती है। या तो कुछ कुछ ज्ञान की बातें होगी, मे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी कही हुई बातों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, उनका अपना अपना इंटरप्रिटेशन रहा होगा या है, बट अभी तक मेरा जो समझ रहा है या मेरी जो एडुकेशन रही है उस हिसाब से जिस कंक्लूज़न पे मैं पहुंचा हूं उनका सार था ये। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो हूं, अगर मैं सही हूं तो सही हूं, गलत हूं तो उसके लिए क्षमा याचना, सही हूं तो ऑल राइट। बहरहाल मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और बस डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ ये इलेक्शन की जर्नी को और देखते हैं कैसे क्या होती है ना। सो आज का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ कुछ इंसाइट्स जो मैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री मैं बीच बीच में डालते रहूँगा सेग्रीगेट करके, और आई लेट यू नो एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन टाटा बाय बाय।